Good morning, students. Let's pledge. I, Suman, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all the necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Okay. Open chapter 2. Chapter 2. Customizing Windows. Students, as we know, the computer has two main components. First is hardware and second is software. And the very important software to operate a computer या फिर कंप्यूटर को ऑन करने के लिए और थ्रू आउट वर्क करने के लिए जो वेरी नेसेसरी सॉफ्टवेयर है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है ना. एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम Windows. Okay, we will learn about desktop and its components, setting date, time and volume of the speaker, customizing windows and taskbar, and use of shortcut menu. In this chapter we will cover out these topics. Okay, now see, you have already learned that an operating system is the interface between a user and a computer. So what is the meaning of interface? Interface means because computer is a machine and we are the human being. Computer can't understand our language and we also can't understand the machine language. So to communicate with human and computer, है ना, there is a software. आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे दोगे और कंप्यूटर आपकी इंस्ट्रक्शन को कैसे समझ के आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, है ना. तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेशंस प्रॉपर हो पाए, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पाए और कंप्यूटर एक्सेप्ट इट एंड गिव अस रिजल्ट, देयर शुड बी एन इंटरफेस इन बिटवीन. देयर इज अ operating system in between user and computer. There is a operating system, so है ना, or it is called a interface, है ना. यूजर और कंप्यूटर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है ना, इसलिए हम इसको इंटरफेस बोलेंगे. ठीक है ना. It manages and controls the working of different parts of a computer. You know, computer different parts को मिलकर कंप्यूटर बनता है ना, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस एंड अदर हार्डवेयर्स एंड ऑल्सो एज वेल एज सॉफ्टवेयर, सबको मिला के कंप्यूटर बनता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कनेक्ट्स ऑल द हार्डवेयर एंड वर्क ऑफ हार्डवेयर्स. इट ऑल्सो कंट्रोल वर्किंग ऑफ हार्डवेयर्स, है ना. द टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है. टू टाइप्स कौन कौन से हैं? Character User Interface, in short CUI, and Graphical User Interface, in short GUI. A big difference between CUI and GUI is CUI is command based. You perform all the tasks with using commands, है ना. You give each and every instruction using commands in CUI, but in GUI you don't need to learn any commands. You just see the icons, menu bars, and just click on the buttons, just click and select the program to open, है ना. तो वो ग्राफिकल बेस्ड हो गया, क्योंकि आइकन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं ना, है ना. एंड दैट पिक्चर्स गिव अस इन्फॉर्मेशन कि विच प्रोग्राम वी आर ओपनिंग. मान लो कि MS पेंट है या MS वर्ड है, तो वी सी द आइकन्स MS Paint है ना और MS Word, then we can we select it and open it.
So it is graphical user interface and character user interface is very different, है ना. ये कमांड बेस्ड हो गया और ये हो गया ग्राफिकल, मीन्स हम पिक्चर्स देखकर प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं ना. ठीक है. डॉस इज CUI, कमांड बेस्ड. डॉस जब आप ओपन करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हर एक कमांड्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपको लर्न रखना होता है. विदाउट, अगर आपको लर्न नहीं है कमांड, यू कांट वर्क विद इट, है ना. बट फॉर विंडो, है ना, नो नीड ऑफ कमांड, यू जस्ट क्लिक एंड ओपन, जस्ट सिलेक्ट एंड ओपन, है ना. ओके, नाउ सी, you will learn how to use the various icons, buttons and menus of Windows desktop. And what is the Windows desktop? See, the very first screen which appear when you switch on your computer is called Windows desktop, है ना. Desktop has pictures, a background image and also have some icons, है ना, and taskbar. We will learn about how to manage icons and how to use taskbars. Okay, see, first is icons. The small pictures on the desktop are called icons. These are the small pictures of programs, है ना. ये सब programs हैं और इसकी स्मॉल पिक्चर्स, जैसे कि ये देखो, दिस शो दैट दिस इज रिसाइकल बिन, है ना. और देखो सी, ये क्या है, माई कंप्यूटर. जब ये खोलोगे आप तो आपका ड्राइव्स ओपन हो जाएंगे, है ना, आपके सारे. एंड व्हाट इज दिस इज फोल्डर, है ना, डॉक्यूमेंट्स. सो द आइकन्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम्स, है ना, in form of pictures, small, very small pictures. Okay, now next is taskbar. The long bar display at the bottom of the desktop. See, from here, this is your taskbar. Taskbar has start button, है ना, programs and also have some notifications, है ना, like date and time, है ना. See, it also contains start buttons, quick launch bar, this notification area, clock and show desktop buttons. ठीक है, डेस्कटॉप बटन्स. फ्रॉम यहाँ से टास्क बार में क्या होती है, जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करोगे, इट शोज इन टास्क बार. मीन्स मान लो हमने माई कंप्यूटर ओपन किया है, इट शोज लाइक दिस. अगर कोई म्यूजिक ओपन किया है ना, विल शो लाइक दिस. यहाँ पे क्विक लॉन्च बार हो गया कि मान लो आपके प्रोग्राम्स यहाँ पे ओपन है, जस्ट क्लिक एंड प्रोग्राम विल ओपन टू यू, है ना, जस्ट फॉर वन क्लिक, है ना. सो ये इजीली एक्सेस कर देता है प्रोग्राम को. यहाँ टास्क बार की ये खूबी है बच्चे, जो प्रोग्राम मान लो फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हो रोज़, या मान लो आपको रोज़ पेंटिंग करनी है तो आप पेंट को यहाँ पर पिन कर सकते हो. और जो प्रोग्राम आपको डेली नहीं चाहिए, कभी कभी चाहिए, तो वो आप यहाँ से अनपिन करके हटा भी सकते हो. ठीक है ना. सो टास्क बार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑन योर डेस्कटॉप एज वेल एज आइकन्स. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. See, another very important component of your desktop is your start button, है ना. start button, see, like this, है ना. इसमें विंडो की पिक्चर बनी हुई है ना. ये आपका स्टार्ट बटन है जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में होता है. कहाँ पे होता है, ये देखो, आपके ये टास्क बार के सबसे लेफ्ट नीचे की तरफ कॉर्नर पे, है ना. दिस इज योर स्टार्ट बटन, है ना, at the bottom left corner of the taskbar. On clicking the start button, you will get the menu like this
and various programs shows here, है ना. See, there are various so many options, है ना. And see all program. When you click on all program, you will get all the softwares or programs here. Okay, and it also shows the program frequently used by you, है ना. अगर आप डे टू डे रोज़ कोई ना कोई वर्क कर रहे हो तो प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे शोज होंगे. और इसके अलावा अगर आप कुछ फाइंड करना चाहते हो तो सारी कंप्लीट प्रोग्राम लिस्ट खुलेगी जब आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट, क्विक लॉन्च बार, है ना. जस्ट नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार there is a quick launch bar. It contains the icons of program that are frequently used, है ना. This is your menus and quick launch bar. ठीक है ना. Next is notification area. Notification area like है ना date and times, है ना. Area shows the icons of the applications or devices that are running in the background, है ना. सी, यहाँ पे अगर आपने MS वर्ड ओपन किया है ना, आपका MS वर्ड ऑलरेडी ओपन है तो यहाँ पे ये शो हो रहा है ना W. अगर मान लो जैसे प्रोग्राम बंद कर देते हो यहाँ से ये आइकन्स भी गायब हो जाएगा, है ना. अगर आपने पिन किया है यूज़ करने के लिए रोज डेली तब नहीं. अगर आपने पिन नहीं किया कोई भी प्रोग्राम अगर आप ओपन करते हो वो यहाँ पे आपको शो होगा इस तरह से छोटे आइकन्स में, है ना. और जैसे आप उसको क्लोज करोगे यहाँ से वो आइकन गायब हो जाएगा. ठीक है ना. Then you will understand कि programs closed. Okay. See, these are your notification area, है ना. ये शो कर रहा है कि कोई डिवाइस इसमें अटैच है या नहीं, इसकी सिस्टम की वॉल्यूम क्या है ना. यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो कि इसमें क्या कौन कौन से डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस अटैच्ड है. यहाँ से आप देख सकते हो कि हाँ इसकी कंप्यूटर में इंटरनेट अटैच्ड है या नहीं, है ना. फ्रॉम वाइट अप एरो, है ना. ठीक है. फ्रॉम वाइट अप एरो यू विल फाइंड योर हिडन आइकन्स. जब इस पर क्लिक करोगे तो और भी आइकन्स ओपन हो जाएंगे तो वो आपको और नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज सेटिंग द स्पीकर वॉल्यूम. अब स्पीकर वॉल्यूम कंप्यूटर सिस्टम की आपकी स्पीकर की वॉल्यूम क्या है ना. मीन्स मान लो कि आपकी सिस्टम वॉल्यूम आपने बहुत कम रख रखी है और अपने स्पीकर की वॉल्यूम बहुत बढ़ा दी है ना, फिर भी आपको आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है. देन यू विल चेक द सिस्टम वॉल्यूम. अगर सिस्टम वॉल्यूम हायर है, लोअर है कि मीडियम है ना, यू विल सेट. ओके. नाउ a speaker icons present in notification area is used for setting the volume of the computer speakers. ठीक है ना. एंड क्लिक द स्पीकर आइकन्स. स्पीकर आइकन्स पे क्लिक करोगे फिर वहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन शो हो जाएगी कि आपके स्पीकर की वॉल्यूम कितनी है, उसको आप कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट इज क्लॉक. क्लॉक है ना. A computer display the date and time using the clock. It appears on the bottom right corner of the desktop on taskbar. टास्कबार पे ही आपको नीचे की तरफ क्लॉक शो होगा. ठीक है ना. वहाँ पे आज टुडेज की टाइमिंग क्या है ना, और डेट क्या है वो सारा आप वहाँ से क्विकली नोटिफाई कर सकते हो लाइक दिस टाइमिंग एंड डेट. ठीक है ना. नाउ सेटिंग द डेट एंड टाइम एंड यू विल ओके. अगर कभी भी है ना डेट एंड टाइम आपका गलत शो हो रहा है तो आप उसको सेट करना चाहते हो है ना अपने अकॉर्डिंग टुडेज के अकॉर्डिंग कि अब जैसे हम कभी वॉच आगे पीछे हो जाती है हम सेट करते हैं ना, तो हम यहाँ पर भी टाइम एज वेल एज डेट सेट कर सकते हैं. तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आइकन, है ना, और ये मेन्यू आपका प्रॉपर ओपन हो जाएगा. यहाँ से आप अपनी डेट सेलेक्ट कर लो. ठीक है ना. चेंजिंग डेट एंड टाइम. ठीक है ना. यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे. वहाँ पे आप चेंजिंग डेट एंड टाइम में जाके प्रॉपर यहाँ इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाएगा जहाँ से आप ये देखो ये एरो है ना ये आगे जा रहा है. मान लो अक्टूबर नहीं है अभी अप्रैल है तो आप इसके बैक जाओगे या फ्रंट जाओगे तो ये चेंज होगा. ठीक है ना. सेम एज ईयर्स भी वैसे ही चेंज हो जाएगा. यहाँ से आप अपना डेट सेट करके फिर टाइम की सेटिंग इस तरह है ना
चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करो, है ना, और वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा फिल करने के लिए। तो जितना भी टाइम हुआ है यू विल फिल एंड क्लिक ऑन ओके। सेम यहाँ पर भी आप अपना डेट एंड टाइम एरो से चेंज करोगे, और जब आपको प्रॉपर शो हो जाएगा यहाँ यही डेट है और यही टाइम है, देन यू विल क्लिक ऑन ओके, देन डेट एंड टाइम विल बी सेट। ओके, नेक्स्ट इज शो डेस्कटॉप बटन्स। शो डेस्कटॉप बटन्स में क्या होगा, द बटन इज लोकेटेड ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द नोटिफिकेशन एरिया। When you click on this button, all the open window will minimize and you can view the desktop screen, है ना। शो डेस्कटॉप बटन से जब आप क्लिक करोगे तो जितने भी प्रोग्राम्स ओपन होंगे वो सारे यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएंगे। मिनिमाइज मतलब प्रोग्राम ओपन तो है पर डेस्कटॉप आपका खाली दिख रहा है, ब्लैंक। प्रोग्राम्स यहाँ टास्क बार पे होंगे, फिर आप यू विल क्लिक, देन योर प्रोग्राम विल अगेन ओपन, ठीक है ना। Next is jump list. Jump list is a pop-up list of tasks or recently opened documents that appear when you right click on any of program icons. जब किसी भी program icons पे right click करोगे तो ये jump up list open हो जाएगा। यहाँ से आप जो भी documents, जो भी program open करना चाहते हो, just jump on that programs and click, है ना। And these features was first introduced in Windows 7. Okay, now let's review, है ना। You find these fill-ups, okay, by yourself, and after that I'll give you a PDF file to correct your mistakes. Okay, next day we will read further. Goodbye, have a good day.